हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The added basic reasons and their prayer to be propitiate of God for the physical is a protection and for the material gains were the main corners of the Rig Vedic people. The Rig Vedic gods were generally is a personifications of different aspects of the natural forces such as the rains, storms, sun, etc. The tribute there of those gods is also affect their table and particular nature of society, as we do not find many of goddess as mentioned in the text. The Indra, Agni, Varun, Mitra, Vyas, Pushana, and the Yama and Soma, etc. are all is a male god. In comparisons, we have only a few goddess such as the Usha, Sarvasti, Prithvi, etc., which occupy the secondary position in their pantheon. The function of different god reflects there is a need in their society. Thus, the sign there are Rigvedic people were engaged in a war with each other. There is a worshipped Indra as the god, and he is the most frequently mentioned god in the Rig Veda. He is a carrier there is a thunder volt and was also respected as the weather god, who was the rains, and the Marut, the god of the storm, added to the Indra in the wars is the way of thrice man. Added there is a leader in the Triverse war, and the Agni, their fire god, was the god of the home and was considered as the intermediary is become between God and man. Soma was associated with the plants and the herbals, and Som was also as a plant from which is the intercoating juice was extracted. And this juice was drunk at the sacrifice is a Varna is another important that is, and there is the keeper of the cosmics in the order known as the Rita. And the Rita was an important aspect of the tree was set up. Pushans and was the god of the road, and the harvest man is a cattle in the life of pastoral's nomad. And this god of must has been to very important. Other gods were similarly associated with their other aspect of nature and the life. All these gods were invoked and the perpetrated as the yojans, and the sacrifice there is a sacrifices were organized by their chief of the tribes and the performed by priests. The god thus is invoked and the sacrifice is supposedly is rewarded their sacrifiers with the success in a war, and progenis increasing and cattle and long life. It is also both there is a large number of gifts in the form of dana and the dakshina to be precise. It is important here to the note that during their entire Vedic phase, the people did not construct of temple, and nor did there is a worship any statue. There are feature of Indian religious developed much later. यदि बात हम करें आरंभिक वैदिक में धर्म का क्या स्थान था, आरंभिक वैदिक काल में धर्म की क्या विशेषताएं थी, तो ये बात जान के हमें यह हैरानी होती है कि जो है सारी सुरक्षा और सुख समृद्धि की जो है सामग्री प्राप्त करने के लिए देवताओं के समक्ष प्रार्थना पूजा की जाती थी। कहते हैं उस समय जो है फीमेल जो है गॉड बहुत ही कम थे, तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है। कहते पूजा अर्चना जो है ऋग्वैदिक काल के लोग जो है प्रमुखता से करते थे, और ऋग्वैदिक काल के देवता जो है प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न रूप थे, जैसे वर्षा, तूफान, सूर्य इत्यादि। इन देवताओं के लक्षणों और विशेषताओं से ही यही प्रतिबिंबित होती है कि समाज का स्वरूप जनजातीय और प्रत्यय जो है सत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान था, क्योंकि उनके ग्रंथों में किसी देवी के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ है। इंद्र, अग्नि और वरुण और मित्र, गौ और पुष्प, यम, सोम इत्यादि सभी देवता पुरुष ही थे। इसकी तुलना में हमारे पास कुछ ही देवियाँ थी, जैसे उषा, सरस्वती, पृथ्वी इत्यादि, जिन्हें धर्म के व्याख्या में द्वितीय स्थान पर रखा गया था। यानी देखा जाए तो उस समय पुरुष प्रधान होने के नाते पुरुष ही देवताओं के रूप में पूजनीय थे।
देखा जाए तो विभिन्न देवताओं के कार्य से समाज में उनकी आवश्यकता का पता चलता था और अंततः ऋग्वैदिक काल के लोग जो है इंद्र की युद्ध की देवता की तरह पूजा किया करते थे। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर इंद्र देव का जो लेख्य भी हमें मिलता है और उसके हाथों में ब्रज होता था, यानी ब्रज ब्रज जो होती थी, जिसको कहते हैं कि दगीची की हड्डियों से बनाया गया था, उसे ब्रज होती थी। और उन्हें मौसम के ऐसे देवता के रूप में भी पूजा जाता था जो वर्षा लाते थे। पवन देव मरुत युद्धों में इंद्र की उसी प्रकार सहायता करते थे जैसे जनजातीय लोग जो थे जनजातीय युद्धों में अपने नायकों की सहायता किया करते थे। अग्निदेव जो आग के देवता थे उन्हें घर का देव मानते थे और उन्हें देवताओं और मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाता था। सोम का संबंध पौधे और जड़ी बूटियों के साथ था। सोम का एक ऐसा पौधा था जिसे मादक रस निकाला जाता था और बलि दिए जाने के समय सोम रस का पान भी किया जाता था। वरुण एक अत्यंत महत्वपूर्ण देव थे जिन्हें ब्रह्मांड का व्यवस्थापक माना जाता था, यानी वरुण को जो था ब्रह्मांड का व्यवस्थापक माना जाता था, जिसे ऋत कहते थे। और यह ऋत जनजाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी था। पुष्प जो था सरके चरवाहों और पालतू पशुओं का देवता था। पशु चराने वाले दोषों के जीवन में इस देवता का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। अन्य देवों का भी इसी प्रकार प्राकृतिक और जीवन के अन्य पक्षों में संबंध था। तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है, ठीक है, जहाँ जो है पुष्य, शर्कों और चरवाहों जो पालतू पशुओं का देवता माने जाते थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। इन सभी देवताओं का आह्वान किया जाता था और यज्ञों और बलिदानों के समय इनकी पूजा भी की जाती थी। इन बलियों की व्यवस्थाएं जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की जाती थी और संपूर्ण कर्मकांड यानी ब्राह्मण पुजारियों द्वारा कराया जाता था। बलियां दिए जाने के समय जिन देवताओं का आह्वान किया जाता था वह इन बलिदानों के जो है फलस्वरूप युद्ध में विजय, संतान उत्पत्ति, पशुधन में वृद्धि और दीर्घ आयु का वरदान देते थे। इस कार्य में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में बहुत संख्या में उपहार भी दिया जाता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं किया और न ही किसी प्रकार की मूर्ति का पूजा अर्चना किया करते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो है वैदिक काल के अंतर्गत, कि उस समय वो लोगों ने ना तो कोई मूर्ति बनाए थे और ना ही वो कोई मंदिर बनाए थे और ना ही पूजा अर्चना की कोई मूर्ति पे इस समय में हमें मिलती है। The next topic is a change in the later Vedic phase. There is the most important changes in the later Vedic phase. We have already noted that in the later Vedic period, agriculture had become an important activity of the people. The changes in the material's life naturally resulted in a change in their attitudes toward the gods and goddess. 2. Continuously interactions with the local non-Aryan population also contribute to these changes. Thus, the Vishnu and the Rudra, which were smaller deities in their Rig Veda, become extremely important. However, we do not have any reference to the different incarnations or avatars of the Vishnu. We are so familiar with any of these later Vedic texts. There is the most important here. Another important feature was the increase in the frequency and number of their yojana, which is generally indeed with their sacrifice of the large number of animals. This was probably the result of the growing importance of a class of Brahmans and their effort of the maintenance there is a supremacy in their changing society. Supremacy and their changing society, the yojanas, both there is them large amount of the wealth in form of dana and the dakshina, and some of there is important yojanas where is a Asve, Medha and Vajrapaya on Rajya Sui, etc. There is the most important yojana, and there is you must be have heard about the yojanas in their story of the Mahabharata and Ramayana. In this is a yojanas which is the continued from to the many days of large part of gift way and went to be a Brahmans, and the purpose of this yojanas was to forward it is a firstly is establish the authorities of their chief over to people, and secondly it is the reinforce it to the territorial aspect of the
poets, and science people from to the all over the kingdoms were invited and to this sacrifice. You will find it interesting to know that a people began to the oppose and this sacrifice during their later Vedic period itself. A large number of cattle and other animals which were sacrificed at the end of the each yojana must have hampered the growth of economics. Therefore, a path of good conduct and self-sacrifice was recommended for happiness and the welfare in the last section of the Vedas. It's called to the Upanishad. The Upanishads contain two basic principles of Indian philosophy is why there are karma and the transmigration of soul. And the rebirth is based on the past deaths, and according to this text is a real happiness lies in the getting is a muska, yani moksha, the freedom from the cycle of birth and rebirth. The moksha is the most important here, the freedom from the cycle of birth and rebirth. देखिए हमारे समक्ष आया है उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तन। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिला। हमने पहले ही यह रेखांकित किया है कि उत्तर वैदिक काल में खेती बाड़ी लोगों का जो है मुख्य कार्य बन चुका था और भौतिक जीवन में आए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देवी और देवताओं के प्रति उनकी जो है अभिरुचियां में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। स्थानीय आर्यन लोगों के साथ जो है परंपरा लगातार लेन देन ने भी इन परिवर्तनों में योगदान दिया था और इस प्रकार विष्णु और रुद्र जो ऋग्वैदिक काल में कम महत्वपूर्ण देवता थे अब बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने जाने लग गए थे। यद्यपि हमें उत्तर वैदिक काल के किसी भी साहित्य में विभिन्न अवतारों या विष्णु के उन अवतारों का कोई संकेत हमें नहीं मिलती है जिन्हें हम आज परिचित है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। उस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि बार बार यज्ञ कराना और इसकी संख्या में वृद्धि और उस यज्ञों का जो है समापन प्राय बहुत ही बड़ी संख्या में पशु बलि दिए जाने होते थे। शायद इसका कारण था कि ब्राह्मण वर्ग बढ़ता महत्व और बदलते समाज में अपना प्रभुता बनाए रखने के लिए किए गए अनेक प्रयास था। यानी जो पशु बल थी एक तरह से ब्राह्मणों के द्वारा अपनी वर्चस्व को बनाए रखने का उनका एक षड्यंत्र था। इस यज्ञों से ब्राह्मणों को बहुत बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा और संपदा मिलती थी और कुछ प्रमुख यज्ञ थे यशमेघ, वाजपेयी और राजस्वई यज्ञ। ये सारे के सारे यज्ञ जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे और बहुत जरूरी थे। महाभारत और रामायण की कथाओं में आपने इन यज्ञों के बारे में सुना ही होगा। आपने देखा ही था महाभारत में भी जहाँ पर युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जो था युधिष्ठिर ने यज्ञ जो है किया था जिसमें उसने पूरा विश्व को विजय हासिल कर लिया था। अगर रामायण आपने देखा होगा तो उसमें देखा था कि इसमें एक यज्ञ किया गया था जिसमें जो है घोड़ा को स्वतंत्र विचलन करने के लिए छोड़ दिया गया था और लव कुश के द्वारा उसको पकड़ लिए जाने के कारणवश जो है युद्ध भी हुआ था। तो ये सारी जो थे ये यज्ञ थे जिसमें अपने आप को जो है सम्राट घोषित करने का एक सबसे आसान तरीका था, जिसमें जो भी अगर राजा इसके अगर बाध्य करता था, अगर वो घोड़ा को पकड़ता था तो उसको युद्ध करना पड़ता था और बाद में उसको जो है उसकी स्वामित्व स्वीकार करनी पड़ती थी और घोड़ा जिस राज्य से गुजर जाता था उसका स्वामित्व स्वीकार कर लिया माना जाता था। तो इस तरह से जो था अपना वर्चस्व बनाने के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ या राजस्व यज्ञ किया जाता था। इन यज्ञों जो कि कई दिनों तक चलते थे इनके संपन्न होने पर उपहारों के अधिकांश हिस्सा ब्राह्मण को ही मिलता था, यानी ब्राह्मण को ही सबसे अधिक हिस्सा इसमें दिया जाता था। इन यज्ञों को करने का दोहरा उद्देश्य था कि प्रथम तो इससे लोग के ऊपर वर्चस्व स्थापित होता था, यानी वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसे यज्ञ किया जाता था, और दूसरा राजनीतिक दृष्टि से भी विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र में राजनीतिक महत्ता स्थापित होती थी, क्योंकि इससे बलियों में संपूर्ण राज्य क्षेत्र में लोगों की जो है आमंत्रण किया जाता था। इससे उसकी प्रभुता का जो है चार चांद लग जाया करता था। आपको जो है जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर वैदिक काल में इस पशुवध का विरोध होना शुरू हो गया था और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और अन्य जानवरों को यज्ञ के अंत में बलि दिए जाने के कारण आर्थिक विकास में काफ़ी बाधा आने लग गई थी, क्योंकि पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था। इसलिए वेदांत के उपनिषद कहे जाने वाले साहित्य में समृद्धि और कल्याण के लिए जो सद्व्यवहार और आत्मयाज्ञ की
अनुशंसा की गई थी। उपनिषदों में भारतीय दर्शन के दो मूल्य सिद्धांत निहित थे, यानी कर्म और आत्मा का पुण्य जन्म लेना, अर्थात कर्म अनुसार जो है पुण्य जन्म लेना। इन ग्रंथों के अनुसार जो है वास्तविक जो है परम आनंद मोक्ष यानी मानव को जन्म मरण की आवरण से मुक्ति मिलने पर मिलता था। यानी लोगों को जो है मेन उद्देश्य उस समय यही होता था कि मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ होता था कि वह जन्म मरण के कर्मों से सदैव के लिए वो मुक्त हो जाया करते थे।